بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شیخ انصاری صاحب شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء کے علیکم السلام اشکال اور قواعد جدیدہ کے وجود میں آنے کا جو سبب بن رہا تھا اس کے جوابات دے رہے تھے۔ اب تک 5 قواعد جدیدہ کا جواب دے چکے۔ 6 اور 7 کو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ تصرف کبھی کبھی نواقل قہری میں سے ہوتا ہے، کبھی نواقل اختیاری میں سے ہوتا ہے۔ تو کیا تصرف مملک ہوگا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ قاعدہ جدیدہ لازم آتا ہے۔ تو اس کا جواب کہہ رہے ہیں کہ ما سبق جو بیانات گزر چکے ہیں انہی سے ہو گیا۔ وہ جواب یہ ہے کہ چاہے تصرف کو آپ ناقل قہری مانیں اور چاہے ناقل اختیاری مانیں، ہمارے پاس وہ جو 3 متضاد دلیلیں ہیں ان سے بچنے کے لیے تصرف کو مملک ماننا پڑے گا۔ وہ 3 دلیلیں جو آپس میں ٹکرا رہی تھیں وہ کیا تھیں؟ ایک یہ تھی کہ استصحاب عدم ملکیت، دوسرے تصرف مالکانہ کے لیے ملکیت ہونا چاہیے، علیکم السلام، اور قاعدیت کہہ رہا تھا کہ جو جس چیز کو لیے ہے اس کا ضامن ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے تقاضا کیا ہے کہ ہم تصرف کو چاہے ناقل قہری ہو چاہے ناقل اختیاری ہو مملک مان لیں۔ یہ جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے، یہ کتاب میں ذکر نہیں ہے، شرحوں میں ذکر ہوا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ تصرف چاہے ناقل قہری ہو چاہے ناقل اختیاری ہو، تصرف مملک ہے، ملکیت آور ہوتا ہے۔ یہ جو قاعدہ ششم لازم آ رہا تھا یہ اس کا جواب ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اشکال اور تھا، وہ یہ تھا کہ ایک طرف اگر تصرف آدمی کر رہا ہے، حالانکہ ناقل قہری یا ناقل اختیاری، بالفرض ہم کر رہے ہیں کہ تصرف، اگر ایک طرف انسان تصرف کر رہا ہے اور اسے ہم ملکیت آور نہ مانیں تو نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ جو تصرف کیا ہے، اگر سمن پہ تصرف کیا ہے تو اس کا بھی مالک ہوا اور اس کا مسمن بھی دوسری طرف محفوظ ہے، یعنی سمن و مسمن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ ایک اشکال یہ ہے۔ دوسرا اشکال جو یہاں پہ جواب کے طور پہ ذکر نہیں ہوا ہے، جلدی سے گزرنے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہی آدمی ناقل بھی اور موجب بھی بن رہا ہے۔ اگر ہم نے تصرف کو مملک مانا تو ایک ہی آدمی تصرف کر کے اپنے مال کا مالک بھی بن رہا ہے اور دوسرے کو کیا نام ہے ملکیت میں دے رہا ہے، ناقل بھی بن رہا ہے۔ یہ اشکال لازم آ رہا تھا، تو اس کا جواب بھی انہوں نے ما سبق جو جواب دیے گئے ہیں اسی سے ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہی موٹا جواب کہ استصحاب کہہ رہا ہے ملکیت نہیں آتی، قاعدیت کہتا ہے کہ ضمانت آتی ہے، اور اباحت التصرف کے جو قائل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپس میں اگر کیا نام ہے ٹوٹ پھوٹ جائے یا تصرف کر لے تو ملکیت ہونی چاہیے، یا مالکانہ تصرف کرے تو ملکیت ہونی چاہیے۔ ان تینوں کا لازمہ یہ ہے کہ ہم ایک آدمی موجب بھی بن رہا ہے، ناقل بھی بن رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اعتبارات فرق ہیں، اس جہت سے کہ وہ تصرف کر رہا ہے متصرف ہے، اس جہت سے کہ اس سے تصرف کرنے سے اس کی پراپرٹی جو دوسرے کی طرف گئی ہے اس کی بھی نقل ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں کہ ناقل بھی ہو موجب بھی ہو۔ دوسرے اور ایک بات اور جو ضمناً کہی گئی تھی 8ویں اشکال یا 7ویں اشکال کے طور پہ جو یہاں پہ نقل نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ اقباض اور قبض جو ہے بطریق اولا تصرف سے زیادہ اولا ہے کس چیز کا؟ ملکیت بنانے کا۔ تصرف سے ملکیت آتی ہے، یعنی جب تک تصرف نہیں کیا 8-10 دن تک معاطات کرنے کے بعد تصرف نہیں کیا ہے، ملکیت نہیں آئی ہے۔ جس دن تصرف کریں گے کیا ہو جائے گی؟ ملکیت آ جائے گی۔ آنما کے جو قائل ہیں قبض و اقباض جس وقت کیا جا رہا ہے، یہی قبض و اقباض کیوں نہیں مملک ہے؟
क्यों? क्योंकि इस वक्त तो नीयत तमलीक भी होती है और नीयत तमलीक के साथ कब्ज़ व इक़बाज़ होता है, ये कहा गया है। कहने की हाँ, तीसरा जवाब हमारा इस सिलसिले में भी है, वो ये है कि कब्ज़ व इक़बाज़ मुमल्लिक है बेतरीक़ औला। तसर्रुफ 4-10 दिन के बाद मुमल्लिक होता है। कब्ज़ व इक़बाज़ जिस वक्त होता है, क्या है, कस्ब मिल्कियत के साथ लेन देन कर रहे होते हैं, तो ये बतरीक़ औला मिल्कियत आवर है, कोई इश्काल नहीं। तो बहरहाल अब तक जितने कवायद जदीदा के उन्वान से शेख जाफ़र कबीर काशिफुल ग़िता ने कहे थे, हमने सबका जवाब दे दिया। अब जनाब शेख अंसारी साहब वापस पूरे मतालिब को जमबंदी करने के बाद एक मरतबा ये कह रहे हैं कि मशहूर इबाहत तसर्रुफ के कायल हैं। कब तक? जब तक इस्तेमाल न किया जाए। अगर मालिकाना तसर्रुफ किया जाएगा तो मिल्कियत आ जाएगी, गस्ब कर लिया जाए मिल्कियत आ जाएगी, तोड़ फोड़ दे इंसान मिल्कियत आ जाएगी, बेच दे, हिबा कर दे, वसीयत कर दे, मिल्कियत आ जाएगी। ये सब हमने कहा मशहूर के नज़रिए की बुनियाद पर। मुतवज्जह हैं इस मतलब की तरफ कि मशहूर का नज़रिया ये है कि सिर्फ इबाहा मुजर्रदा है, मुआतात में सिर्फ क्या है, इबाहा मुजर्रदा है। जब तसर्रुफ करेगा, जब तोड़ फोड़ करेगा, जब बेचेगा, जब हिबा करेगा, जब इर्स के तौर पे करेगा, जब ईसा करेगा, तब मिल्कियत आएगी। यही तो कहा था। मुकाबिल में और भी नज़रियात थे, क्या? चूँकि दोबारा ये सारे नज़रियत वापस आएंगे, तायद होंगे, इसलिए मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूँ। शेख मुफीद का नज़रिया ये था, पहले क्या, मुआतात बिल्कुल अक़्द लफ्ज़ी की तरह से मिल्कियत आवर है, लुज़ूम इब्तदा से अरे लुज़ूम आ जाता है, ये है। मुकाबिल में अल्लामा हिल्ली का एक नज़रिया था जो उससे वापस पलट गए थे, वो क्या है, असलन ना इबाहत तसर्रुफ ना मिल्कियत, बल्कि ये बै फासिद के मानिंद है, इसमें कोई मिल्कियत वगैरह ना इबाहत तसर्रुफ आता है। मुहक्किक़ कराची का क्या नज़रिया था कि नहीं, मुआता जैसे ही करते हैं मिल्कियत आती है, मगर ये मिल्कियत ख़ियारी वाली जैसे होती है, यानी मुतज़ल्लिल होती है। जब तसर्रुफ़ करेंगे मालिकाना तब मिल्कियत क्या हो जाएगी, लाज़िमा हो जाएगी। ये 4 नज़रिए पेश किए गए थे। अब यहाँ पे जनाब शेख अंसारी साहब इन सारे इस्तिबादात को जो मुहक्किक़ काशिफुल ग़िता ने किया है, वो कहा है कि उनके इस्तिबादात कोई दलील के तौर पे थोड़ी उन्होंने पेश किए, बस एक तरीके से ताज्जुब किया है, बईद जाना है। मगर ये बईद जानना और ये ताज्जुब करना बजा है, ये ताज्जुब करना, ये क्या नाम है, बईद जानना बजा है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उनके ये इश्कालात जो जिसका हम जवाब दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जवाब देने के बावजूद हम ये कह रहे हैं कि मशहूर का जो नज़रिया कायम हुआ है कि इबाहत तसर्रुफ मुजर्रद इबाहा आता है, बाद में मिल्कियत आती है, और उसकी बुनियाद पर ये 6-7 कवायद जदीदा लाजिम आ रहे थे। तो ये इस्तिबादात अगरचे हमने सबका जवाब दे दिया, फिर भी इन इस्तिबादात के होते हुए पहले इबाहत तसर्रुफ के कायल हो, बाद में मिल्कियत के कायल हो, बहरहाल ये इस्तिबादात बजा हैं, अपनी जगह पर हैं। लिहाजा पलट करके हम मशहूर के नज़रिए को कबूल नहीं करेंगे। मैं शेख अंसारी इस नज़रिए को कबूल करता हूँ कि मिल्कियत मुआतात में आती है, यानी मुहक्किक़ सानी का नज़रिया काफ़ी हद तक सही है, ताकि इन कवायद जदीदा से हम बच जाएं। इबारत पे तवज्जो करते हैं। सुम्मा इन्नका बिमुलाहज़ते मा ज़करना, अब तक जो हमने इश्कालात के जवाबात दिए मुहक्किक़ काशिफुल ग़िता को, जो जवाबात हमने दिए, अगर आप उसको मुलाहिज़ा करें तो तक़दिरो अला तख़ल्लुस अन साइर मा ज़करहु, जितना उन्होंने इस्तिबादात जिक्र किए हैं सबका जवाब हो गया, और वो 2-3 जवाब जो रह गए थे आज हमने खारिज से बयान किए। कौन सा? कि मूजिब और नाकिल का इत्तेहाद हो रहा है, हमने उसका जवाब दिया। 2 एतबार है, एक तरफ से नाकिल है, एक तरफ से मूजिब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे, कब्ज़ व इक़बाज़ औला है मिल्कियत का, तो हमने उसका जवाब दिया कि ये दुरुस्त है। या तीसरा ये था मुमल्लिक
नाकिल कहरी है या नाकिल अख्तियारी है। हमने कहा नाकिल कहरी हो या अख्तियारी हो, तसर्रुफ बहरहाल मिल्कियत आवर है। तो अब यहाँ पे वही समेट करके ये कह रहे हैं कि हमने अब तक 5 कवायद जदीदा का जवाब दिया, लेकिन आप उन सिर्फ 5 कवायद जदीदा से नहीं, सारे कवायद जदीदा जो लाजिम आ रहे थे उससे तखल्लुस गुलो खलासी कर सकते हैं, बच सकते हैं। सुम्मा इन्नका बिमुलाहज़त मा ज़करना, अब तक जो हमने 5 जवाब दिया है उसी के जरिए से तक़दिरु अला तखल्लुस, आप अपना गुलो खलासी कर सकते हैं, बच सकते हैं। अनसाइर मा ज़करो, जो कुछ उन्होंने जिक्र किया था वो सारे इश्कालात के जवाबात हो गए। हमने 5 का जवाब दिया, इश्कालात कितने थे? 8 अदद। तो आज हमने 3 वो भी जिक्र किया, तो इस मिला करके ये कह रहे हैं कि सारे इस्तेबादात सही। दूसरा जवाब, एक तो हमने मुफस्सल सबका जवाब दिया, 5 का जवाब दिया, और उन 5 से बकिया 3 का जवाब भी हो गया, 8 जवाबात हो गए। दूसरे लफ्ज़ों में सारे कवायद जदीदा जो लाजिम आ रहे थे शेख जाफर कबीर के बयान की रोशनी में, सबसे हम गुलो खलासी कर ली, हम बच गए। अलग से एक बात और हम कहने जा रहे हैं, वो ये है मा अन्नहु रहमहुल्लाह लम यज़कुरहा लिल एतमाद। ये जो कवायद जदीदा की बात 8 अदद कही थी शेख जाफर कबीर ने, ये कोई दलील के तौर पर थोड़ी उन्होंने जिक्र किया था। कौल मशहूर क्या है? इबाह मुजर्रदा। इस इबाह मुजर्रदा के कायल होने से ये कवायद जदीदा 8 अदद लाजिम आते हैं। मगर ये कवायद जदीदा जो 8 अदद लाजिम आते हैं, उन्होंने बेउनवाने दलील किस चीज की? रद्द कौल मशहूर, तवज्जो करेंगे नहीं, रद्द कौले मशहूर की बुनियाद पर इन कवायद जदीदा को पेश नहीं किया था, बल्कि इस्तेबाद, इस्तेजाब। मुझे हैरत हो रही है कि कैसे मशहूर इस बात के कायल हैं कि कस्द तो तमलीक का किया है मुताअतियैन ने, हो रहा है क्या? इबाहा। ये आपस में उकूद ताबे कुसूद नहीं हो रहे हैं, यही तो पहला इश्काल था। तो इस तरह के जो इश्कालात उन्होंने किए थे, उन इश्कालात को इस्तेजाब के तौर पर, इस्तेबाद के तौर पर जिक्र किया था, लिल एतमाद जिक्र नहीं किया था। लिल एतमाद से मुराद क्या है? कौले मशहूर को बातिल करने के लिए दलील के तौर पर जिक्र नहीं किया है। मा अन्नहु, तवज्जो करें बारक पे, मा अन्नहु रहमहुल्लाह, जनाब शेख जाफर कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने लम यज़कुरहा, हा की ज़मीर कहाँ पलट रही है? कवायद जदीदा जो उन्होंने जिक्र किए, ये लम यज़कुरहा लिल एतमाद। लिल एतमाद बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, मतलब ये है कि इन सारे 8 कवायद को दलील बुतलान कौल मशहूर के तौर पर पेश नहीं किया, दलील के तौर पर पेश नहीं किया। ऐसी दलील हो जो कौल मशहूर को बातिल करे। मशहूर क्या कह रहे हैं? मशहूर ये कहने की मुआतात में लेन देन करने के वक्त अगरचे मुताअतियैन का कस्द तमलीक होता है, मगर हासिल क्या होगा? इबाहतुल मुजर्रदा। वाज़ेह है। इसके ऊपर इश्काल किया 8 अदद जनाब शेख कबीर ने। उनमें से एक क्या था? उकूद ताबे कुसूद होना चाहिए, ये उकूद ताबे कुसूद नहीं हो रहे हैं। हमने सारे जवाबात दिए। जवाब देने के बाद हम फिर अलग से एक मरतबा और कह रहे हैं, वो ये है कि इन दलाइल को, इन कवायद जदीदा को, सॉरी मैंने दलाल कह दिया, इन कवायद जदीदा को शेख जाफर कबीर ने मशहूर के नजरिए को बातिल करने के लिए दलील के तौर पर जिक्र नहीं किया है। जब दलील के तौर पर जिक्र नहीं किया है तो ये कवायद जदीदा हवा हो गए। एक तो हमने जवाब दिया मुफस्सल, वाज़ेह है ना, एक तो हमने हर एक का जवाब दिया, उकूद ताबे कुसूद ना हो। निकाह कर रहे हैं, महर का तस्करा हुआ है मगर मुद्दत जिक्र नहीं हुई है, आपका कसद था मुता का, हो गया क्या? दायमी, तो उकूद ताबे कुसूद नहीं हुए। ये इश्कालात और भी मिसालें इसकी हैं। तो इस तरीके से जितने इस्तेबादात थे, अव्वलन तो हर एक का मुफस्सल हमने जवाब दिया। आज एक मोटा जवाब दे रहे हैं। वो मोटा जवाब क्या है? कि ये जो कवायद जदीदा लाजिम आ रहे हैं, ये कवायद जदीदा बेउनवाने दलील रद्द नहीं है। किसके? कौल मशहूर के दलील के रद्द के तौर पे नहीं जिक्र किए हैं। खूब। वल इंसाफ, शेख अंसारी साहब छोड़ नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं इन्नहा, ये जो कवायद जदीदा जिसको दलील के तौर पे जिक्र नहीं किया और हमने सबका जवाब भी दे दिया है, इन्नहा इस्तेबादात फी महल्लिहा, ये बईद जानना, ये ताज्जुब करना, ये इश्काल करना जनाब शेख जाफर कबीर का बरमहल है, यानी ये इस्तेबादात पाए जाते हैं।
अब दोबारा टर्न ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अवलन तो कह दिया कि ये इस्तेबादात, हमने सबका जवाब दिया और जवाब देने के साथ आज एक कुल्ली बात कही। इन इस्तेबादात को इन्होंने बस यूं ही ताज्जुब का इजहार किया, दलील के तौर पे पेश नहीं किया है। मगर हम फिर ये कह रहे हैं ये इस्तेबादात अगरचे जवाब दिए जा चुके हैं मगर फी महल ही हैं। इन इस्तेबादात की बुनियाद पर हुकूक ताबे क़ुसूद नहीं हो रहे हैं। खुम्स व ज़कात वगैरह गैर के माल में देना लाजिम आ रहा है, गस्ब मुमल्लिक बन रहा है, इरादे तसर्रुफ मुमल्लिक बन रहा है, वगैरह वगैरह। ये जितने इश्कालात जनाब शेख जाफर कबीर ने इस्तेबादात के तौर पर जिक्र किए हैं वो बेमहल ही हैं, हक बजानिब हैं। फिर अब आप किस बात के फिर कायल हैं? जब हक बजानिब है तो इश्काल वारिद है। किसके ऊपर इश्काल वारिद है? कौल मशहूर के बिना पे। कौल मशहूर क्या है? इबाहा मुजर्रदा आता है मुआतात में, जब तसर्रुफ करेंगे, जब तोड़ फोड़ मचाएंगे, जब उसमें मालिकाना तसर्रुफ करेंगे तब आननमा मिल्कियत आएगी और फिर वो मिल्कियत आवर हो जाएगा। ये मशहूर का नजरिया था। ये सारे इस्तेबादात इन मशहूर के नजरिए के खिलाफ जा रहे हैं। मैं शेख अंसारी कह रहा हूँ कि ये इस्तेबादात बरमहल हैं। जब बरमहल हैं तो अब मशहूर का नजरिया काबिल कबूल नहीं होगा। फिर मशहूर का नजरिया क्या होगा? काबिल कबूल है। मुश्किल है इस कौल को कबूल करना। तवज्जो से सुनो। वबिल जुमला फखरूज अन असालत अदमिल मिल्क अल मुअतज़द बिश्शोहरतिल मुहक्ककत इला ज़मानिल मुहक्किक सानी वबिल इत्तिफाक़िल मुद्दआ फिल गुनिया वल क़वाइद व हुना व फिल मसालिक फी मसअलते तवक्कुफ़िल हिबा अलल ईजाब वल क़बूल मुश्किलुन खबर खुरूज है। कुल्ली बात कहने के बाद, ये कहने के बाद कि जनाब शेख जाफर कबीर के इस्तेबादात क्या हैं? हक बजानिब हैं। उन इश्कालात का भले ही हमने जवाब दिया लेकिन इश्कालात अब भी चिपके हुए हैं। अब कह रहे हैं कि तवज्जो करें, लिहाजा मशहूर